Hello everyone. In this video I will explain summary procedure adopted by court during any suit. It is mentioned under Order 37 of Civil Procedure Code. It is called summary procedure or summary suit. First of all, we have to know what is the difference between ordinary suit and summary suit. In ordinary suit, as we know that when plaint presented before any court, it means suit instituted. The date when suit instituted, court will issue summon to the opposite party, that is the defendant, and after the service of summon within 30 days or maximum within 90 days, defendant has to file written statement in his defense. It is the procedure mentioned for ordinary suit. But when we talk about summary suit, तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस मिलता है because in summary suit, defendant cannot defend himself without the permission of court. It means when plaint instituted by plaintiff under Order 37, if the plaintiff applies for summary suit, then defendant cannot defend himself without the leave from the court. When ordinary suit instituted, then the limitation period, generally the limitation period for the ordinary suit is 3 years. But if plaintiff want to institute suit in Order 37, then limitation period is 1 year. Now we will discuss all these steps mentioned under different rule of Order 37. What is the procedure for summary trial? आप लोग एक चीज आप लोग ध्यान रखिए summary के लिए, it is the most important thing that only the High Court, City Civil Court and Court of Small Causes, these three courts per se have power to try any suit as summary suit. If any other court, as mentioned under Rule 1 of Order 37, if any other court, then that court must be notified by the concerned High Court to try any suit as summary suit. Generally, High Court, City Civil Court and Court of Small Causes को per se power है कि वो किसी भी matter का summary trial कर सकती हैं, and that matter must be related to the money claim. किस मैटर का समरी प्रोसीजर हो सकता है, किस मैटर पर समरी ट्रायल हो सकता है, इट इज स्पेसिफिकली मेंशन अंडर ऑर्डर 37. इट इज द मनी क्लेम. इफ प्लेंटिव वांट टू क्लेम मनी, डेट का क्लेम हो सकता है, किसी रिटन कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है, कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन में, प्रोमिसरी नोट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, हुंडीज, इनके थ्रू भी हो सकता है. बट दैट क्लेम और द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज ऑलवेज मनी क्लेम. तो though two essential elements are there for summary suit. First one is that suit, the subject matter of the suit must be money claim. हमेशा money claim के लिए summary suit होता है. And second thing is that defendant cannot defend himself as a matter of right. Rather, it is the discretion of the court. Court may grant leave to defend or may not. ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है. उसके बाद रूल 1 में आपको याद रखना है कि कौन सी कोर्ट को पर से पावर है किसी भी मैटर को समरी वे में समरी प्रोसीजर से ट्राई करने का. इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है कि वेदर हाई कोर्ट, सिटी सिविल कोर्ट और कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस को छोड़कर कोई और कोर्ट भी किसी मैटर को समरी ट्राई कर सकती हैं. आंसर इज यस. एनी अदर कोर्ट मे ऑल्सो ट्राई एनी सूट इन समरी मैनर इफ एक्सप्रेसली नोटिफाइड बाय द हाई कोर्ट. अगर उस कोर्ट को नोटिफाई करके हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन से उस कोर्ट को ऑथराइज किया है. यहाँ पर रूल 1 में एक और इम्पोर्टेंट चीज है आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से. हाई कोर्ट कैन रेस्ट्रिक्ट और एक्सपेंड द स्कोप ऑफ ऑर्डर 37. ये इसका मतलब ये है हाई कोर्ट बाय नोटिफिकेशन में ऐड सम कैटेगरीज, कुछ सूट की कैटेगरी को ऑर्डर 37 में ऐड कर सकती है. मतलब इन कैटेगरी के सूट जो हैं उन पर समरी प्रोसीजर हो सकता है. अगर सपोज कोर्ट ने एक बार सपोज 20 सूट्स की कैटेगरी लिस्ट की है फॉर समरी प्रोसीजर,
देन फर्दर कोर्ट में रिस्ट्रिक्ट। इट मीन्स दैट जो अभी 20 है कैटेगरी, उनमें से ये भी पॉसिबल है कि कोर्ट इन फ्यूचर उनको कम करके अब केवल 15 ही मैटर समरी प्रोसीजर हो सकता है। इट मीन्स हाई कोर्ट में रिस्ट्रिक्ट, 5 को हटा भी सकती है, कोर्ट में स्ट्राइक आउट। तो ये हुआ स्ट्रिक्ट करना। कोर्ट में एक्सटेंड, हाई कोर्ट में एक्सटेंड दी स्कोप ऑफ ऑर्डर 37। इट मीन्स दैट अर्लियर मान लीजिए कि 20 मैटर पर समरी प्रोसीजर हो सकता है, देन इन फ्यूचर कोर्ट उसमें 2, 4, 5 जो कैटेगरी और ऐड करनी है कोर्ट उसमें ऐड कर सकती है। इट इज द मीनिंग ऑफ दैट हाई कोर्ट में रिस्ट्रिक्ट और एक्सपेंड दी स्कोप ऑफ ऑर्डर 37। तो हम लोगों ने एक जनरल समरी प्रोसीजर पर समझ लिया है। अब इसके प्रोसीजर पे आइए कि व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर समरी ट्रायल, कैसे समरी सूट का ट्रायल होता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर 37 रूल 1, इफ एनी सूट इंस्टीट्यूटेड अंडर ऑर्डर 37, जब भी कभी ऑर्डर 37 में सूट इंस्टीट्यूट करना है, देन एवरमेंट रिलेटिंग टू द समरी सूट मस्ट बी स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द प्लीडिंग। प्लीडिंग मतलब जो प्लेंटिफ का ये प्लेंट होगा, इसको वाद पत्र कहते हैं। इसमें प्लेंटिफ ये स्पेसिफिकली मेंशन करेगा कि ये जो मैटर है मुझे समरी प्रोसीजर करना है, ऑर्डर 37 में मैंने इसको इंस्टीट्यूट करना है। इट मस्ट बी स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द प्लेंट। इसके बाद आ जाइए आप सीधे ऑर्डर 37 रूल 2 के सब रूल 3, जो मैंने आपको बताया कि डिफेंडेंट कैन नॉट डिफेंड हिमसेल्फ विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट। इट इज एक्सप्रेसली मेंशन्ड अंडर रूल 2 सब रूल 3, डिफेंडेंट शैल नॉट डिफेंड। इट मीन्स जनरल डिक्लेरेशन इज दैट डिफेंडेंट शैल नॉट डिफेंड। बट कब डिफेंडेंट डिफेंड कर सकता है, इसके लिए आगे प्रोविजन है, व्हेन आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कोर्ट विल इशू समन। समरी सूट में 2 सम्मन इशू होते हैं। फर्स्ट सम्मन, व्हेन फर्स्ट सम्मन इशूड अगेंस्ट द डिफेंडेंट। जब फर्स्ट सम्मन डिफेंडेंट के अगेंस्ट इशू होगा तो 2 सिचुएशन हो सकती हैं। फर्स्ट, इफ द डिफेंडेंट अपेयर्स, या तो डिफेंडेंट अपेयर हो जाए और अपेयर होके ही वांट टू प्रोड्यूस और ही वांट टू सेटिस्फाई द कोर्ट दैट यस लीव टू डिफेंड मस्ट बी ग्रांटेड टू मी। अपेयर होके वो न्यायालय को यह बात पर संतुष्ट करना चाहता है कि मुझे जो है लीव टू डिफेंड ग्रांट करनी चाहिए। दूसरी सिचुएशन हो सकती है इफ डिफेंडेंट डज नॉट अपेयर। अगर सम्मन इशू हुआ और डिफेंडेंट अपेयर नहीं हुआ, देन कोर्ट में प्रोनाउंस द जजमेंट forthwith in favor of plaintiff. It means if defendant not appear, आपने ऑर्डर 9 में पढ़ा होगा appearance and non appearance, consequences of non appearance, सेम वैसा ही कुछ प्रोविजन है। अगर डिफेंडेंट अपेयर नहीं होता है, देन द थ्योरी ऑफ डीम्ड एडमिशन विल अप्लाई। थ्योरी ऑफ डीम्ड एडमिशन क्या होती है? इट मीन्स दैट प्लेंटिफ ने अपने प्लेंट में जो भी प्लीडिंग्स नहीं होंगी, पॉइंट 1, 2, 3, जैसे प्लेंटिफ ने कहा कि डिफेंडेंट 50,000 के लिए लाइबल है, डिफेंडेंट 2,000, 10,000, वॉट एवर अमाउंट इज मेंशन इन द प्लेंट स्पेसिफिकली, और उस सम्मन में भी जो अमाउंट स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, अगर डिफेंडेंट अपेयर नहीं होता है, देन द थ्योरी ऑफ डीम्ड एडमिशन विल अप्लाई। कोर्ट विल प्रिज्यूम दैट कि ऑल द प्लीडिंग्स मेंशन्ड इन द प्लेंट will be admitted by the defendant, and theory of deemed admission के according court will, it means that defendant ने इस pleading को स्वीकार कर लिया है, then there is no need to frame issues, there is no need to frame issues, कोई आगे proceeding की जरूरत नहीं है, because defendant ने सारी बातें मान ली। अगर सारी बातें मान ली, then what should be the procedure? Procedure is that court should pass the judgment forthwith in the favor of plaintiff. कोर्ट जो है तुरंत plaintiff के फेवर में जजमेंट पास कर देगी। इसी को देख के आपको लगा होगा कि इट इज द समरी प्रोसीजर मेंशन अंडर ऑर्डर 37, बिकॉज इन ऑर्डिनरी प्रोसीजर कोर्ट shall not pronounce this judgment forthwith, rather court will issue second summon, third summon, and court will go for ex parte proceeding. After that court may pass the ex parte judgment, ex parte decree. But here, because it is the summary procedure mentioned under 37, so court will forthwith pronounce the judgment इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ, मतलब डिफेंडेंट के अगेंस्ट में डिक्री पास हो जाएगी। अब देखिए, जब कोर्ट जजमेंट प्लेंटिफ के फेवर में पास करेगी क्योंकि डिफेंडेंट नहीं आया था, उस टाइम कोर्ट क्या करेगी? जो प्रिंसिपल अमाउंट, जो अमाउंट सम्मन में मेंशन है, जो अमाउंट प्लेंट में मेंशन है, वो अमाउंट के लिए ऑर्डर करेगी। उसके साथ इंटरेस्ट
विद इंटरेस्ट, जब से मैटर ड्यू था, वो मनी जब ड्यू थी, और मनी जब ड्यू थी उस डेट से और जब तक डिक्री हुई है उस डेट के बीच में जो भी इंटरेस्ट बनता है, मेन 50,000 अगर लाइबल है तो वो प्लस इंटरेस्ट प्लस कॉस्ट में भी इम्पोज ऑन द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट के ऊपर ये 3 चीजें हो जाएंगी, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद आइए, अगर यहां पर अपियर नहीं हुआ तो डिक्री विल बी मेड इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ। सपोज अगर फर्स्ट समन पर डिफेंडेंट अपियर हो गया था, देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट प्रोसीजर। इसके लिए आप आइए ऑर्डर 37 रूल 3 के सब रूल 4 में। कोर्ट the plaintiff will issue the second summon for judgment। जजमेंट के लिए सेकंड सम्मन इशू होगा, और जब प्लेंटिफ सेकंड सम्मन इशू करेगा उस टाइम प्लेंटिफ विल एनेक्स एन एफिडेविट विद द सेकंड सम्मन, और उस एफिडेविट में प्लेंटिफ विल वेरीफाई हिज कॉज ऑफ एक्शन कि व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्शन, क्यों उसने समरी सूट फाइल किया है। कॉज ऑफ एक्शन मस्ट बी एक्सप्रेसली mentioned in the affidavit. Second, the actual amount must be clearly mentioned in the affidavit. So the object of affidavit, जो second सम्मन के साथ plaintiff affidavit attach करेगा, इसका object है just to verify the cause of action and the amount mentioned in the pleading or summon। जब second सम्मन issue हो गया है, now क्या हो सकता है, 2 चीजें हो सकती हैं फिर, या तो डिफेंडेंट अपियर होगा या तो डिफेंडेंट अपियर नहीं होगा। पहले हम देखते हैं कि जब डिफेंडेंट अपियर नहीं होता है, सपोज डिफेंडेंट हैज नॉट अपियर, देन कोर्ट में प्रोनाउंस द जजमेंट फोर्थविथ। नाउ यहाँ पर कोर्ट, देखिए उस टाइम भी कोर्ट ने प्रोनाउंस कर दिया था जजमेंट यहाँ पर, बट यहाँ जब अपियर हो गया था तो सेकंड में क्या होगा, अगर सेकंड सम्मन में फिर अपियर नहीं हुआ, नाउ कोर्ट में प्रोनाउंस द जजमेंट इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ, और जो जो उसका क्लेम है कोर्ट उसको दिला देगी। देखिए यहाँ पर एक पीरियड मेंशन है ऑर्डर 37 में, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड फॉर पीटी एंड इंटरव्यू। जब सेकंड सम्मन डिफेंडेंट के अगेंस्ट इशू होगा, देन विद इन द पीरियड ऑफ 10 days फ्रॉम द सर्विस ऑफ सम्मन, यहाँ से विद इन 10 days डिफेंडेंट हैज टू अप्लाई फॉर लीव टू ग्रांट। अगर वो लीव लेना चाहता है कि मुझे डिफेंड करना है खुद को, तो विद इन 10 days ही हैज टू अप्लाई फॉर लीव टू डिफेंड। अगर नहीं आया तो मैंने बताया कोर्ट में प्रोनाउंस द जजमेंट। सपोज after the second summon and within 10 days defendant apply for leave to defend, now court के पास again court has 2 option। देखिए always it is the discretion of the court may allow leave to defend or court may not allow। Defendant cannot claim right to defense as a matter of right which he can claim in the ordinary suit। समरी सूट में वो एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकता। अब यहाँ पर विद इन 10 days उसने अप्लाई किया, एंड व्हेन ही अप्लाइज he proves before the court or he want to satisfy the court that yes, I have some tangible ground, I have some plausible issues, I have some reasonable issues on the basis of which if court satisfied, जो भी इसने फर्स्ट यहाँ पर अपेयर होके अगर कोर्ट को ये संतुष्ट कर दिया इस बात से कि हाँ डिफेंडेंट के पास कुछ ऐसे रीजनेबल ग्राउंड है। सपोज डिफेंडेंट ने कह दिया ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट, प्लेंट के साथ जो डॉक्यूमेंट अटैच किया, सपोज जो आपने कॉन्ट्रैक्ट का जो पेपर अटैच्ड किया था, सपोज दैट कॉन्ट्रैक्ट वाज फोर्ज्ड or it was fabricated by the plaintiff, then and if court is satisfied by the pleading of defendant, then court may allow leave to grant। Clear? Court may allow leave to grant, or if court is not satisfied with the facts produced by the defendant, defendant की बातों से अगर न्यायालय संतुष्ट नहीं है, न्यायालय को लगता है there is no reasonable ground, वहां पर कोई ऐसा केस में जान नहीं है, there is no substance, then court may not grant। अगर कोर्ट ने ग्रांट नहीं किया, then again court will pronounce judgment in favor of plaintiff। Suppose court grants, अब कोर्ट ने ग्रांट किया तो ऑर्डर 37 में आपको फिर दिखेगा कि when court grant, court may grant conditional leave to defend और unconditional leave to defend। देखिए यहाँ पर क्या है, जितना डिफेंडेंट का केस स्ट्रांग होगा, जितने डिफेंडेंट ने जो फैक्ट कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किए, जो बातें कही हैं, जितना स्ट्रांग होगा, अगर डिफेंडेंट के फैक्ट्स स्ट्रांग हैं, इट मींस कोर्ट विल ग्रांट लीव टू डिफेंड अनकंडीशनली। अनकंडीशनली मतलब नाउ इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट वांट टू प्रोड्यूस, किसको प्रोड्यूस करना चाहता है विटनेस की तरह, किस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना चाहता है, इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट खुद तय करेगा।
But when court grant leave to defend with condition, it means that it is the discretion of the court. Court will ask the defendant to produce such particular witness or document first. कोर्ट कहेगी पहले आप ये वाला, पहले इस पर प्रूफ दीजिए कि ये डॉक्यूमेंट कैसे फोर्ज है, कैसे फैब्रिकेशन है इसमें हुआ है. सो कंडीशन में डिफेंडेंट विल डिफेंड अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, whereas in unconditional leave it is the pure discretion of the defendant कि उसको कैसे लीव, कैसे उसको अपनी लीव के लिए क्या क्या चीजें प्रूव करनी है. सो इट इज द ऑल अबाउट समरी सूट. एक चीज और बचती है, जैसे ऑर्डिनरी सूट के अलावा यहाँ पर आपको रूल 7 में दिखेगा, ऑर्डर 37 के, कोर्ट में सेट असाइड द डिक्री पास्ड इन समरी सूट. सपोज अगर ये विद इन 10 days अपियर नहीं हो पाया था, या यहाँ पर अपियर नहीं हो पाया था फर्स्ट सम्मन में या सेकंड सम्मन में, या अप्लाई नहीं कर पाया था लीव टू डिफेंड, एंड देयर वाज सम रीजनेबल ग्राउंड ड्यू टू द एक्ट ऑफ गॉड. आप जान रहे हैं इस टाइम जो कोरोना का डिसीज है, नो वन कैन गो आउटसाइड. सपोज इट इज द सिचुएशन एंड विद इन 10 days डिफेंडेंट अपियर नहीं होता ड्यू टू साइक्लोन, इट इज ऑल्सो एक्ट ऑफ गॉड. कोलकाता में इतना आप देख रहे हैं क्या सिचुएशन हुआ. सपोज कोई फायर की सिचुएशन हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ही वॉज इन कोमा, तो विद इन 10 days उसको पता ही नहीं है एंड दैट पीरियड एक्सपायर्ड, देन इट विल डिफीट द जस्टिस अगर कोर्ट इस जजमेंट को जो समरी सूट में दिया गया अगर इसको सेट असाइड नहीं किया गया. सो टू इंश्योर जस्टिस, टू प्रोटेक्ट एंड promote justice, to ensure justice, court may set aside the decree passed under order 37 and even court may stay the execution or set aside the execution. ठीक, but it is the rare order passed under rule 7. set aside का order बहुत जल्दी नहीं होगा. Reason, the burden of proof will lie upon the defendant. Defendant has to prove some special or exceptional circumstances which cannot be prevented by the defendant, and what was the cause for non-appearance of the defendant. Thank you so much. It's all about the summary suit.